चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे अब नमो छोटी बॉल आ गई तो विष्णुपादाय अब खुल लेता है। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते साधु भक्ति वेदांत ये चाहिए स्वामी ये चाहिए नित्य नामिने ये। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। हरे कृष्ण। स्वागत है सभी का आज का बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ के सेशन में। सो टुडे विल बी कंटिन्यूइंग विथ आवर योगा लैडर। तो आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से है तो लेट मी सी वेयर इज अवर ब्रह्म ज्योति पाठ। अच्छा ये बहुत आगे है, ठीक है कोई नहीं। सो मैं अभी जो मैंने कहा था कि जो योगा पिरामिड या फिर योगा लैडर में बोला था मैं वो ले सकता हूँ, बट वही चीज हम लोग का आगे आ रहा है, तो मैं आगे जब वो आएगा मैं बताऊं फिर कि अभी ले लूं। आप बताइए। इधर वेज इट्स फाइन, बस थोड़ा सा वो फास्ट हो जाएगा, बस इसके लिए मैं जानना चाहता था। आगे ले लीजिएगा। अभी ले लीजिए, अभी ले लीजिए। ओके 1-1 चल रहा है अभी। हम्म, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा हम लोग कवर कर ही लेते हैं, एनीवेज वो विद टॉपिक आ ही जाएगा वो। तो हम लोग बेसिकली एक साथ के बदले थोड़ा थोड़ा करके हम लोग वो योगा लेटर इनवेस अभी कवर करने वाले, टॉपिक वही चलने वाला अभी। सो अभी काइंड ऑफ अभी हम देखेंगे भक्ति योगा क्यों बेटर है, काइंड ऑफ वही से ये पैराग्राफ उसी के ऊपर वो डील कर रहा है, तो कोई ये चीज पढ़ सकता है। एनीवन, कोई योद्धा जो पढ़ना चाहेगा? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। हाँ जी। The generally accepted method for transferal to higher planets is the practice of meditational yoga system or jnana system. The bhakti yoga system, however, is not to be practiced for transferal material planet for those to any material planet. For those who are servants of Krishna, the Supreme Lord, are not interested in any planets in this material world, because they know that on whatever planet one enters in the material sky, the four principles of birth, old age, disease, and death are present. On higher planets, the duration of life may be longer than on this earth, but death is there nonetheless. By material universe, we refer to those planets where birth, old age, disease, and death reside. And by spiritual universe, we refer to those planets where there is no birth, old age, disease, and death. Those who are intelligent do not try to elevate themselves to any planet within the material universe. If one tries to enter higher planets by mechanical means, instant death is assured, for the body cannot stand the radical changes in atmosphere. But if one attempts to go to higher planets by means of the yoga system, he will acquire a suitable body for entrance. We can see this demonstrated on this earth, for we know it is not possible for us to live in the sea, in a watery atmosphere, nor is it possible for aquatics to live on the earth. As we understand that even on this planet,
one has to have a particular type of body to live in a particular place. So a particular type of body is required for other planets. On the higher planets, bodies live much longer than on this earth, but death is there nonetheless. By material universe, we refer to those planets where birth, old age, disease, and death reside. Sorry, मैं हाँ, यहाँ से हाँ हाँ यहाँ से on the higher planets, bodies live much longer than Earth. For 6 months on Earth is equal to 1 day on the higher planets. Thus, the Vedas describe that those who live on higher planets live upward to 10,000 Earth years. Yet, despite such a long lifespan, death awaits everyone. Even if one lives 20,000 or 50,000 or even millions of years in the material world, the years are all counted and death is there. How can we escape this subjugation by death? That is the lesson of the Bhagavad Gita. हरे कृष्ण। तो उसका वर्ष क्या है? ना जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. For soul there is never birth or death. Once having been, does he ever cease to be. He is unborn, eternal, ever existing, undying, primeval. He is not slain when the body is slain. ये भगवत गीता 220 में आता है. तो ये थोड़ा सा हमने कल कवर किया था. तो हमने क्या बोला था कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग मून प्लैनेट जा रहे हैं, मार्स प्लैनेट जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग स्पेसशिप्स एंड इस सब से हम चले तो जाएंगे, बट क्या है, पहले तो टाइम लगता है, उसके लिए इतना खर्चा आता है, उसके लिए इतना एफर्ट्स लगता है, एंड इवन अगर हम वहां पे जाएंगे तो भी हम लोग वहां पे परमानेंटली स्टे नहीं कर सकते, एंड उसके लिए हम लोग को स्पेस सूट पहनना पड़ता है. मतलब वो भी काइंड ऑफ एक बॉडी है ताकि हम लोग वहां पे थोड़ा एंट्री मार सके और हम लोग वहां पे कुछ भी कर सके. वो भी टेम्परेरी है क्योंकि ऑक्सीजन टैंक खत्म हो गया तो नहीं रह पाएंगे. तो इसके लिए क्या है, हम लोग को एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉडी चाहिए ताकि वो डिफरेंट एटमॉस्फेयर में हम लोग रह सके. और बात क्या है, जैसे कि हमने अर्थ में भी देखा है, अगर मछली है वो पानी के अंदर रहती है, उसको बाहर निकल मर जाएगी. हम लोग पानी के अंदर जाएंगे, हमको भी ऐसा ऑक्सीजन मास्क से, वरना हम भी मर जाएंगे. हम भी अगर हिमालय बहुत ऊपर चले गए तो वहां पे सांस नहीं आता है, तो वहां पे भी जीना थोड़ा मुश्किल है. तो हर एक शरीर, जो भी एक जीव है, उसको जैसा शरीर दिया है वो वैसा ही एटमॉस्फेयर में रह सकता है. अगर ये धरती में ऐसा अप्लीकेबल है तो सोच के देखिए, जब आप धरती के बाहर अगर कोई दूसरा प्लेनेट में अगर आप जा रहे तो सोचिए कि कितना डिफरेंस रहेगा. तो इसके लिए क्या है, अगर वो बाई चांस मैकेनिकल वेस्ट में चला भी जाएगा तो क्या है, इंस्टेंट डेथ इज अश्योर्ड फॉर द बॉडी कैन नॉट स्टैंड अ रेडिकल चेंज इन एटमॉस्फेयर. इसी के लिए क्या है, हमको योगा सिस्टम, जो हम लोग ज्ञान योगा, ज्ञान ध्यान, ध्यान और ज्ञान योगा है, उससे क्या होता है, उसको हायर प्लानिटरी सिस्टम में एंट्री मिलता है ताकि वहां के एटमोस्फेयर के मुताबिक उसके शरीर मिले एंड वो वहां पे वो रह सके. इसी के लिए क्या है, दिस प्रोसेस आर देयर. एंड जैसे हमने कहा था क्या है, इधर वो मेटीरियल यूनिवर्स में जा सकता है, चलो भाई मेरे को स्वर्ग लोग जाना है, ब्रह्म लोग जाना है, या फिर वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सकते हैं, उसी के ऊपर है, क्योंकि उस दोनों का ज्ञान तो उसको शास्त्र पढ़ के है ही. तो ही कैन डिसाइड कि उसको कहाँ जाना है, क्योंकि उसने वेदास या फिर योगा उसने, क्योंकि उसने परफेक्ट कर लिया है, उसको पिंक शीट दे दिया कि हाँ भाई तुम्हें कहाँ जाना है, तुम डिसाइड कर सकते हो, कभी तुम्हें ये शरीर छोड़ना है तुम डिसाइड कर सकते हो. वो एबिलिटी दे दिया जाता है क्योंकि उसने शास्त्र के मुताबिक उसने परफेक्ट कर लिया है योगा को. तो उस अगर कोई इंसान बाई चांस मेटेरियल यूनिवर्स के अंदर जाना चाहता है तो सबसे पहले उसका अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाता है, ठीक है, तो मेटेरियल यूनिवर्स में चले तो जाओगे, स्वर्ग में चले गए, ब्रह्मलोक में चले गए, क्योंकि तुमने परफेक्ट कर लिया है, तुमने इच्छा कर लिया है, तुम्हें इमीडिएटली वहां पे शरीर मिल जाएगा वहां पे रहने के लिए. एंड वहां पे क्या बताया जाता है कि जो हायर प्लैनेट्स होते हैं वहां पे क्या होता है, लेट मी शो दिस पार्ट. भगवत गीता के 8th चैप्टर में भगवान ये चीज कहते हैं. क्या कहते हैं, तो जो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था कि जो पहला 6 महीने धरती के, वहां के लिए क्या है, वो सिर्फ एक दिन है अपर प्लानिटरी सिस्टम में. तो वही चीज भगवान 8 चैप्टर वर्स 24 और 25 में कह रहे हैं कि दोस हु नो द सुप्रीम ब्राह्मण, मतलब भगवान को समझ लिया योगा के थ्रू, अटेंड द सुप्रीम बाय पासिंग अवे फ्रॉम द वर्ल्ड, वो लोग अपना शरीर को छोड़ेंगे कब, ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ द फीरी गॉड इन द लाइट, एट द ऑस्पिशियस मूवमेंट ऑफ द डे, ड्यूरिंग द फोर्थ नाइट ऑफ द वेक्सिंग मून, और ड्यूरिंग द 6 months व्हेन द सन ट्रेवल्स इन द नॉर्थ. तो ये जो सन ट्रेवल्स इन द नॉर्थ ये है, ये कब है,
ये 6 महीने चलता है, 6 मंथ्स। एंड ये 6 मंथ्स कब स्टार्ट होता है? मकर संक्रांति के दिन। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मकर संक्रांति। तो तभी जो 6 मंथ्स हमारा चलता है, दो 6 मंथ्स आर द पीरियड जब देवता लोग के लिए, स्वर्ग लोग में इट्स अ डे टाइम। तो जो हमारा 6 महीना उनके लिए बस 12 घंटा है, फर्स्ट डे उनके लिए वो डे है। एंड वही जब विंटर सीजन आ जाता है, जब चतुर्मास आता है, तो हम लोग, कुछ लोग को पता रहेगा चतुर्मास का टाइम, तो चतुर्मास के टाइम पे क्या होता है, दैट इज व्हेन एक्चुअली द सन पासेस टू द साउथ, जिसकी वजह से विंटर सीजन आ जाता है। तो इसी के लिए क्या है, उनके लिए वो रात है। तो हमारा 1 साल स्वर्ग लोक के लिए बस एक दिन है। तो इस तरीके से क्या है, ये क्या बोलते हैं उसको, रिलेटिविटी ऑफ टाइम चलता है। हमने आइंस्टाइन का तो सुना है, रिलेटिविटी ऑफ टाइम का हमने सुना है। तो सेम वे हम लोग शास्त्र में भी देख पाते हैं कि एक्चुअली में practically we can see how relativity of time works between the planetary systems। एंड उसके साथ साथ क्या है, नेक्स्ट चीज, चलो तुम मेटेरियल यूनिवर्स में चले गए, ठीक है भाई, तुम क्या कर रहे हो, एक तुम्हारे एक दिन धरती का 1 साल है, इतना लंबा जी रहे हो तुम, ठीक है, बहुत अच्छा है। बट बात क्या है कि चलो तुम मेटेरियल यूनिवर्स में चले गए, तुम स्वर्ग लोक ब्रह्मलोक में भी चले गए। अभी ब्रह्मलोक का अगर हम देखेंगे, रिलेटिविटी ऑफ टाइम, तो भूल ही जाओ, वो बहुत लंबा है। तो इसके लिए क्या है, जब तुम ब्रह्मलोक में भी चले गए, बहुत लंबा भी जियोगे, बट प्रॉब्लम क्या है, even if one lives for 20,000, 50,000, millions of years, problem is in the material world, the years are all counted and death is there। तो आप कौन से भी प्लेनेट पे घूम लो मेटेरियल यूनिवर्स के अंदर, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो वैदिक कॉस्मोलॉजी, उसके पहले एक और चीज था, हाँ, आई थिंक, देखो, तो 8.16 सेम चैप्टर में भगवान क्या कह रहे हैं कि फ्रॉम द हाईएस्ट प्लैनेट इन द मटेरियल वर्ल्ड डाउन टू द लोएस्ट, तुम ब्रह्मलोक ले लो, स्वर्गलोक ले लो, धरती भूलोक ले लो, या फिर पाताल, वहां पे भी ले लो, हाईएस्ट प्लैनेट इन द मटेरियल यूनिवर्स डाउन टू द लोएस्ट, ऑल आर प्लेसेस ऑफ मिसरी वेर इन रिपीटेड बर्थ एंड डेथ टेक प्लेस, दुखालयम अशाश्वतम। एंड इसके लिए क्या है, बट वन हु अटेन्स टू माई अबोर्ड, ओ सन ऑफ कुंती, नेवर टेक्स बर्थ अगेन। तो इसके लिए क्या है, आप कौन से भी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, ब्रह्मलोक कहीं पे भी चले जाओ, क्या है, ऑल आर प्लेसेस ऑफ मिसरी वेर इन रिपीटेड बर्थ एंड डेथ टेक्स प्लेस। तो ये फोर्थ चैप्टर में हम लोग और डिटेल में ये देखेंगे, बट हम यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, आप मटेरियल यूनिवर्स में कहीं पे भी चले जाओ, बट क्या है, आपका मरना तो निश्चित है। क्योंकि क्या है, हम क्योंकि हम लोग को एक शरीर लेना पड़ रहा है, आप समझने का प्रयास करेंगे तो क्या है, मटेरियल यूनिवर्स के अंदर अगर हमको रहना है तो क्या है, हमको एक एटमॉस्फेयर रहता है, जिस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए हमको शरीर लेना पड़ता है। एंड ऑब्वियसली अगर हम शरीर ले रहे हैं, मतलब क्या, उस शरीर का जन्म हो रहा है, एंड अगर शरीर का जन्म हो रहा है तो शरीर का मरण भी होगा। तो इसके वजह से क्या है, हम ऑल तो मरेंगे नहीं, इट्स ऑब्वियस, क्योंकि हम लोग सोल है। बट प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि हम लोग को एक शरीर धारण करना पड़ता है, तो क्या है, हमको वो शरीर को एक दिन छोड़ना भी पड़ेगा, चाहे वो शरीर लाखों साल भी क्यों ना हम लोग उस शरीर में रह पाए, बट एक दिन जरूर आएगा जब हमको वो शरीर छोड़ना पड़ेगा। और अगर हम लोग वैदिक कॉस्मोलॉजी देखेंगे किस तरीके से वो काम करता है, सर्चिंग फॉर द कंप्लीट, हाँ ये वाला। उसे अंदर क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हम्म तो यहाँ पे आप देख पाएंगे क्या, पूरा मटेरियल मैनिफेस्टेशन आप देख पाएंगे। तो हम लोग कहाँ पे है, हम लोग कभी कभार अपने इंटरनेट पे अपने कभी रील में देख लिया रहेगा कि वो बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले छोटा सा एंड से लेके बेसिकली बड़ा हो रहा है, फिर क्या है, हाँ एक रूम दिख रहा है, घर दिख रहा है, फिर स्टेट दिख रहा है, कंट्री दिख रहा है, फिर क्या है, धरती दिख रहा है, फिर बड़ा होके होके क्या हो रहा है,
वो सोलर सिस्टम दिखा रहा है, बाद में क्या है, मिल्की वे दिखा रहा है, पूरा यूनिवर्स दिखा रहा है, एंड फिर वापस वो अंदर जा रहा है, एंड फिर दिखा रहा है कि हम लोग कितना इनसिग्निफिकेंट है। तो इन सेम वे अगर हम देखेंगे तो क्या है, वही चीज हम लोग अभी जो उन्होंने टेलीस्कोप के थ्रू ढूंढा है, वही चीज अभी हम लोग शास्त्र के अंदर जो दिया है हम लोग को देखने वाले। तो शास्त्र में जैसे हमको दिया है, भूलोक, हम लोग यहाँ पे हैं, अच्छे से हम लोग एक वन ऑफ द प्लैनेट्स, भूलोक में क्या है, अर्थ प्लैनेट है, तो हम लोग यहाँ पे हैं, एंड वहां पे क्या है, हम लोग अच्छे से वहां पे हैं, तो क्या है उसके ऊपर भूव, स्वर्गलोक, महाजन, तप, सत्यलोक या ब्रह्मलोक, तो ये हमारे अपर प्लैनेटरी सिस्टम है। एंड इसके नीचे जाएंगे तो अतल वितल सुतल तलातल पाताल ये सब है। तो ये सब क्या है, हमारे 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है। एंड हर ऐसा एक यूनिवर्स है, ये पूरा मिला जुला के एक यूनिवर्स बनता है, ये हो गया वन यूनिवर्स। एंड वैसे कई सैकड़ों यूनिवर्सेस है, जो लोग बोलते हैं ना मल्टीवर्स साइंस फ्रिक्शन में, तो वो हम लोग के अंदर भी है। तो हम भी, हमारे पास इनफैक्ट प्रूफ भी है कि कैसे मल्टीवर्स एक्चुअली फंक्शन करता है, एंड कैसे हर एक यूनिवर्स के अंदर अलग, सेम वे बट अलग स्केल में टाइम काम करता है। तो इन दिस वे क्या है, सब कुछ हम लोग को दिया गया। एंड इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो क्या है, हम लोग देख पाते हैं क्या, कैलाश धाम है, ब्रह्म ज्योति है, जिसके बारे में हम लोग जल्द अब चर्चा करेंगे। एंड उसके साथ साथ क्या है, वैकुंठ प्लैनेट्स है, नारायण लोक है, साकेत लोक है, गोलोक वृंदावन है, तो सब कुछ हम लोग देख पाते हैं। तो दिस इज द ओवरऑल क्रिएशन, पूरा मैनिफेस्टेशन बोलते हैं ना, दुनिया की सृष्टि कैसे रचाई गई। बोलते हैं ना ऊपर वाले, दुनिया क्यों बनाई, क्या मन में समाई, तो बेसिकली दुनिया क्यों बनी, तो बेसिकली हमारे पास उसका भी कारण है कि दुनिया भगवान ने क्यों बनाई। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे हमारा एक यूनिवर्स है, वैसे मल्टीपल यूनिवर्सेस हैं, एंड यहाँ से स्पिरिचुअल वर्ल्ड हमारा स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ये सब क्यों बताया कि ये हमारे पास ऑप्शन है, हम भूलोक में कोई एक पर्सन योगा प्रैक्टिस कर सकता है, एंड उसके बेसिस में एक तो वो ये ऊपर प्लानिटरी सिस्टम में जा सकता है या फिर नीचे भी जा सकता है, उसके ऊपर है। बट वो ऊपर जा सकता है यहाँ पे, और नहीं तो वो यहाँ के बदले सीधा स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे जा सकता है। इट्स अप टू हिम कि उसको कहाँ पे जाना है। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर वो यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाता है, वो लंबा तो जी लेगा, बट क्या है, दूसरे प्लेनेट में अगर उसका रहना है तो क्या है, उसको शरीर धारण करना पड़ेगा। एंड शरीर धारण किया है तो क्या होगा, देयर इज बर्थ, एंड इफ देयर इज बर्थ मतलब क्या, देयर इज डेथ। तो इसके लिए क्या है, आप कितना भी कौन से भी प्लेनेट में घूम लो, अल्टीमेटली आपको मरना ही है, वो शरीर को बेसिकली आपको छोड़ना ही है, एंड छोड़ के क्या है, कहाँ गिरोगे, वापस आपको धरती में आना ही है। सो दिस इज द प्रॉब्लम व्हेन वी गो समवेयर इन द मटेरियल यूनिवर्स। ऑफ कोर्स क्या किसका कोई सवाल रहेगा इसकी, मतलब दूसरे प्लैनेट्स का क्या, तो उसका हम आगे देखेंगे। बट दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी ट्राई टू गो टू मटेरियल यूनिवर्स। मटेरियल यूनिवर्स के अंदर अगर हम घूमेंगे तो व्हाट हैपेंस, वी हम घूम तो सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हमने योगा किया है, हमने उतना मेहनत किया है, तो हमको जाने तो मिल जाएगा। बट यू नीड टू एक्सेप्ट दैट, यू हैव टू लीव दैट प्लेस एंड अगेन कम बैक। ये बोलते हैं ना, मतलब इंटर प्लानिटरी पिकनिक है ये। बेसिकली क्या है, आपको अगर कहीं और जाना है तो क्या कर सकते हैं आप, 10,000 साल के लिए पिकनिक के लिए चले गए, स्वर्ग लोग चले गए, ब्रह्म लोग चले गए, वहां पे मजा किया, हो गया, चलो अभी वापस आओ काम, बैक टू ड्यूटी, अभी भूलोक में आ गए, वापस हम लोग कर्म और योगा करने के लिए वापस आ गए। तो दिस इज व्हाट बेसिकली यू नो वेकेशन या फिर ट्रिप इज इंटर प्लानिटरी ट्रैवल एंड वेकेशन, इस तरीके से काम करता है। सो दिस इज हाउ वी सी इन अवर मटेरियल यूनिवर्स। देन तो एंड इसके लिए क्या है, वन वे, इसके लिए यहाँ पे भक्ति योग का भी वो एक स्लाइट आइडिया दे दिया। क्या है कि जो भक्ति योगा प्रैक्टिस करते हैं वो लोग क्या है, बाय डिफॉल्ट वो चाहते भी नहीं है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी प्लैनेट इन द मटेरियल वर्ल्ड, बिकॉज दे नो दैट ऑन whatever planet one enters in the material sky, the four principles of birth, death, old age and disease are present। तो इस तरीके से समझिए कि दुनिया है, अभी समझो कि मैं इंडिया में हूँ, अभी इंडिया से जब मैं ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका जाऊंगा तो क्या होता है, वो वहां पे कस्टम ड्यूटीज रहेंगे, वो चेक करेंगे भाई तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास एंड पासपोर्ट है क्या, सब कुछ है क्या, वीसा है क्या देखेंगे। एंड उसके साथ साथ क्या करेंगे, वो कंट्री में अलग अलग रूल्स रहेंगे। शायद इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइव है, यूएस में राइट हैंड ड्राइव है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कस्टम के मुताबिक हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी रहने चाहिए, एंड वहां के रूल्स को भी हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, विच इज ऑब्वियस। अगर नहीं करेंगे तो क्या है, हमको भगा देंगे। तो जब ये रूल अप्लीकेबल होता है मटेरियल, ये धरती के अंदर, तो मटेरियल वर्ल्ड में क्या रूल है, दुक्कालयम शाश्वतम में
birth, death, old age and disease. These are the civil laws within the material world. तो जिस तरीके से अगर आप दूसरे जगह में जा रहे हैं तो वहां का रूल फॉलो करना पड़ेगा, तो मेटेरियल वर्ल्ड में कस्टम्स के रूप में क्या है? बर्थ, डेथ, ओल्ड एज और डिसीज। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी मेटेरियल वर्ल्ड में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? ये चार चीज आपको फेस करना ही पड़ेगा। दैट इज द रीजन क्या है, इट्स सेड कि भाई अगर इतना मेहनत कर ही रहे हैं तो इट्स बेटर टू एक्चुअली गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इट्स वो भी हम लोग आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में कंपैरिजन किस तरीके से हम लोग करते हैं। सो दैट्स द रीजन क्या है, इट इज वाइज टू एक्चुअली गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इंस्टेड ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, बिकॉज अल्टीमेटली वहां पे भी हमको मरना ही है। एंड हमने देखा था हमको मरना तो पसंद नहीं, हमको वहां जाना ही क्यों? अगर हम देखेंगे तो हमको अगर दूसरे प्लानिटरी सिस्टम में जाना है, चलो वो भी समझ के लेते हैं, दूसरे प्लानिटरी सिस्टम में भी हम जा रहे हैं, उसके अंडरलाइंग रीजन क्या है कि हाँ भाई वहां पे लंबा जिएंगे, वहां पे हम लोग मजा करेंगे, वहां पे यहाँ से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा रहेगा। तो वहां पे भी क्या है, नॉलेज देख रहे कि हाँ भाई इट्स अ बेटर प्लेस, तो हमको बेटर फैसिलिटीज मिलेगा, वहां पे हम लोग लंबा जी पाएंगे। तो क्या हो गया, सत्य और चित हो गया, वहां पे हम लोग अच्छे से रह पाएंगे, आनंद। तो हम सचित आनंद ही ढूंढ रहे हैं। इवन अगर हम लोग हायर प्लानिटरी सिस्टम में भी जाएंगे तो क्या है, अच्छा रहने का जगह है, लंबा जीने का जगह है, अच्छा फैसिलिटीज है, मतलब क्या अच्छे से रह सकते हैं, मजा करेंगे। तो मतलब क्या वापस वहां पे भी सच्चित आनंद ही ढूंढ रहे हैं, अल्टीमेटली वही बात है। आप भाग भाग के कहीं पे भी चले जाओ, सच्चित आनंद हमारा नेचर तो बदलने नहीं वाला, क्योंकि सोल तो सोल ही है, वो तो कभी बदलने नहीं वाला। तो इसके वजह से क्या है, वो सच्चित आनंद ही मटेरियल वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ आप वही ढूंढेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली क्या है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज हमको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड का लॉ है। भगवान खुद बोल रहे हैं दुक्कालयम अशाश्वतम। तो इसके लिए क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो इसके वजह से क्या है, ये चार चीजें हम लोग को फेस करना ही पड़ेगा अगर आप मटेरियल वर्ल्ड के अंदर अगर आप रहेंगे। तो इसके लिए क्या है, अगर आप योगा कर ही रहे हैं और अगर आपका ऑप्शन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने का, देन व्हाई नॉट गो देयर। तो दैट इज द वन ऑफ द पॉइंट इज बीइंग मेड हियर। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई। तो यहाँ पे सेम चीज हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हाँ ठीक है, तो यही चीज आज के लिए हम लोग ये दो पैराग्राफ ले लेते हैं। जो चीज हम लोग लेंगे देन विल टुमारो हम लोग डिटेल में हम लोग समझेंगे कि ब्रह्म ज्योति ये जो लोग बोलते हैं वो क्या है, हम उसको समझ में आएगा। तो ये कोई पढ़ना चाहेगा ये दो पैराग्राफ? We are spirit, soul, and as such we are eternal. Why then should we subject ourselves to birth and death? One who asks this question is to be considered intelligent. Those who are Krishna conscious are very intelligent because they are not interested in gaining entrance to any planet where there is death. They will reject a long duration of life in order to attain a body like God's. Ishvaraha Paramaha Krishnaha Satchit Anand Vigraha. Sat means eternal, Chit means full of knowledge, and Anand means full of pleasure. Krishna is the reservoir of all pleasure. If we transfer ourselves from this body into the spiritual world, either to Krishna Loka, Krishna's planet, or any other spiritual planet, we will receive a similar Satchid Anand body. Thus, the aim of those who are in Krishna consciousness is different from those who are trying to promote themselves to higher planets within this material world. The self or soul of the individual is a minute spiritual spark. The perfection of yoga lies in the transferal of this spiritual spark to the top of the head. Having attained this, the yogi can transfer himself to any planet in the material world according to his desire. If the yogi is curious to know what the moon is like, he can transfer himself there. Or if he is interested in higher planets, he can transfer himself there. Just as travelers go to New York, Canada, or other cities on the earth. Wherever one goes on earth, he finds the same visa and customs systems operating. And all the material planets, one can similarly see the principles of birth, old age, disease, and death operating. तो वही चीज हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया कि अगर हम लोग सच्चित और आनंद है तो वही चीज हम लोग हायर प्लैनेट्स में भी ढूंढेंगे कि भाई थोड़ा बेटर फैसिलिटीज मिलेगा, लंबा जिएंगे, खुश रहेंगे, अच्छा रहेगा यहाँ से। बट वहां पे भी क्या है, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज हमको फेस करना पड़ेगा। देन व्हाई नॉट
ट्रांसफर आवरसेल्फ टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहाँ पे हम लोग सच में ही सच्चित आनंद में हम लोग रह सकते हैं। एंड इसके लिए क्या है, योगी के पास ऑप्शन है, वो जैसे कि इंटरप्लैनेटरी वेकेशन में जा सकता है, या फिर वो डायरेक्ट स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी जा सकता है, इट इज अप टू हिम। बट क्या है, जैसे सब जगह में वीजा एंड कस्टम ड्यूटी है, वैसे मटेरियल वर्ल्ड में क्या कस्टम्स है या फिर रूल्स है, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिसीज रहेगा ही। तो दैट इज द रीजन क्या होता है कि इट्स वाइज, इट्स इज वाइज, बट इट्स वाइज टू ट्रांसफर आल्सो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इसके बाद कल नेक्स्ट पैराग्राफ तो उसी के ऊपर है, रिगार्डिंग दी ब्रह्म ज्योति। तो दिस इज वेयर आवर योगा लैडर स्टार्ट्स। तो we will start about it from tomorrow probably, नहीं तो हम मंडे को भी वापस मैं रिवाइज करूंगा अगर मोहित सर नहीं लिए तो वी विल बी स्टार्टिंग विद द योगा लैडर। तो मेन चीज वही है। एंड वन ऑफ द थिंग इज, कोई सोच सकता है अरे यार मतलब कि समझो कि जैसे गोपाल प्रभु है, वो बोले कि अरे यार मेरे को मिल्की वे देखना था, मेरे को चंद्रलोक देखना था, मतलब क्या मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाऊंगा तो मैं वो देख नहीं पाऊंगा क्या? तो मेन चीज हमको ये समझना है कि ये हमको फोर्थ चैप्टर में एनीवेज आएगा, मैं पूरा डिटेल में अभी लूंगा नहीं, बट एनीवेज आई विल कवर इट। कि अभी समझो कि आता है ना कि एक आता है ट्रायल और एक आता है प्रीमियम। कुछ प्रोडक्ट ले लो, सॉफ्टवेयर ले लो या कुछ भी ले लो, एक आता है प्रीमियम वर्जन, एक होता है ट्रायल वर्जन। तो जब भगवान ने ये दुनिया बनाई तो भगवान ने क्या किया था, दिस इज जस्ट ट्रायल वर्जन, जो है ना छोटा सा सैंड बॉक्स है। बच्चा है, बच्चा क्या बोलते हैं कि मेरे को ना खाना बनाना। उसको असली तो हम लोग स्टव ये सब तो हम देंगे नहीं, बेचारा पूरा घर जला देगी बेचारी। तो क्या है, हम लोग छोटा सा प्ले टॉय हम दे देते कि बच्चा ये ले खेल ले, वो बेचारी कुछ तो बनाती रहती है। बट जब उसको भूख लगता है वो चीज तो वो खाएगी नहीं, वापस मम्मी के पास ही आएगी, मेरे को खाना चाहिए। तो इन द सेम वे हम लोग को क्या किया है, एक छोटा सा एक वर्किंग मॉडल हम लोग को दे दिया है, जिसको हम लोग मटेरियल वर्ल्ड बोलते हैं। हमने देखा ही था कि मटेरियल वर्ल्ड कितना बड़ा है। अगर ये वर्किंग मॉडल है और अगर ये दुनिया में अगर कोई चीज हमको इतना आकर्षित कर सकता है, तो सोचो कि जो असली है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो सोचो कि वो कैसा रहेगा, सोच के देखो। तो फोर्थ चैप्टर उसी के ऊपर है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड का कंपैरिजन पे। बट मेन चीज हमको क्या समझना है, तो मेन चीज हमको क्या समझना है कि ऑब्वियसली जो आपको मजा आपको स्वर्ग लोक में या फिर ब्रह्मलोक में मिलेगा, आपको वही मजा, वही क्या उससे ज्यादा मजा आपको मिलेगा जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाओगे। तो दिस इज, तो बेसिकली यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑफ एनीथिंग, बट यू आर गेटिंग मोर व्हेन यू गो टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो यही चीज हम लोग देखेंगे जब हम फोर्थ चैप्टर में स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है, हम लोग उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो दिस इज द पॉइंट। तो क्या है, बोलते हैं ना एक पत्थर पे आपको दो आम मिलेंगे। आपको जो दुनिया में घूमना था वो चीज भी आपको करने मिलेगा, प्लस आपको कभी मरना भी नहीं पड़ेगा। तो सोचो आपको अगर दोनों चीज करने को मिल रहा है, तो इट्स बेटर दैट वी ऑप्ट फॉर दैट। सो दैट इज व्हाट इट्स बीइंग सेड हियर। ऑलराइट, तो किसका कोई प्रश्न आज के सेशन? हाँ, मेरे को ये पूछना है कि जो लोग हैं ब्रह्म लोग एंड ऑल, या सुतल पाताल वगैरह, ये सब मटेरियल वर्ल्ड में ही आता है, ये सब मटेरियल लोक्स में आता है। हाँ जी, मतलब यहाँ पर भी डेथ एग्जिस्ट करती है, जैसे ब्रह्मलोक हुआ या जी तो भगवान कहाँ, स्वयं बोल रहे हैं। ओके, तो कहाँ 8.14। नहीं करती, मतलब कि साकेत में नहीं करती और हम्म गोलोक धाम में नहीं वैकुंठ, करती? कैलाश धाम, साकेत धाम, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, तो बेसिकली दिस स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में नहीं करती। ओके। तो क्या सर फिर वहां पे हमें शरीर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी स्पिरिचुअल वर्ल्ड वहां में? पे वहां पे जैसे उसमें दिया था वी गेट अ सच्चित आनंद बॉडी, तो वहां पे हम लोग को सच्चित आनंद शरीर मिल जाएगा, जिसके वजह से क्या है, एंड सच्चित आनंद जब हमारा हम भी क्या है, सच्चित आनंद है, शरीर भी सच्चित आनंद है। सो बेसिकली वहां पे वी गेट आवर स्पेसिफिक फॉर्म, जहाँ पे हम लोग को कभी मरना नहीं पड़ेगा। तो वहां पे विल बी हैविंग अ स्पिरिचुअल बॉडी। यहाँ पे हमारे पास मटेरियल बॉडी है, वहां पे हमारे पास स्पिरिचुअल बॉडी रहेगा। ओके ओके। तो सर तो कोई वहां पे गया है क्या कहीं अभी तक? हाँ बहुत लोग गए हैं, जिसके जैसे क्योंकि इतने सारे लोग गए हैं, इसकी वजह से क्या है, वो लोग आचार्य के रूप में आते हैं हमको बताने के लिए। तो बेसिक चीज है, जैसे जैसे अभी कोई अमेरिका गया है, वो अमेरिका जो गया है वही बोल सकते हैं कि भाई अमेरिका के लिए क्या क्या प्रोसेस है, आपको क्या करना पड़ेगा, क्या क्या लगता है। तो इन द सेम वे जो गया है वो बता सकता है कि आपको क्या करना, क्या लग सकता है। तो इन द सेम वे स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो रियलाइज कर चुका है, भगवान वही कहते हैं भगवद गीता 4:34 में, क्या बोलते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षिणते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। तो जो हम लोग गुरु बोलते हैं, ऑब्वियसली अब बोनाफाइड गुरु,
नॉट अ सो कॉल्ड गुरु। तो जो एक्चुअल में साधु गुरु है, तो वो क्या है, उनका 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उनका सबसे पहले क्या है, इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम साधु या फिर हम उनको गुरु कहते हैं, उनका सब मेन चीज क्या है, उनका सबसे पहला लक्षण कि देयर एक्शंस एंड बिहेवियर आर अलाइंड विद द शास्त्रस। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिम्टम। अगर हम किसको साधु या गुरु बोल रहे हैं, उनका सबसे पहले शास्त्र के मुताबिक उनका आचरण होना चाहिए। अगर बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, इट्स ऑब्वियस कि भाई वो लोग पाखंडी। उसकी वजह से क्या है, ये हम लोग सबसे पहले जानना चाहिए। एंड जो बोनाफाइड है, बोनाफाइड लोग जो साधु या गुरु रहते हैं, वो लोग कौन है, दे नो द वे, गो द वे, एंड देन शो द वे। उनको शास्त्र पढ़ के उनको सब समझ गया है, दे नो द वे। उन्होंने खुद को सिद्ध कर लिया है, उपदंशिते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, उन्होंने तत्वदर्शी है वो। उन्होंने उनको स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो चुका है, एंड दे हैव, एंड स्पेशली जब हम बोलते हैं सेल्फ रियलाइज्ड, आत्मा साक्षात्कारी, ही इज ऑल्सो नोन एज त्रिकालदर्शी। जब वो लेवल तक आ जाता है तो क्या हो जाता है, ही बिकम्स त्रिकालदर्शी। तो ये जो मटेरियल टाइम है, ये मटेरियल टाइम उस पर एक्ट करना बंद कर देता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअली रियलाइज हो चुका है। तो मटेरियल चीजें उस पर इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या है, मटेरियल टाइम भी उस पर इम्पैक्ट नहीं करता, तो वो टाइम के भी परे हो सकता है। तो इसके लिए क्या है, दीज ऑल थिंग्स हैपन व्हेन यू बिकम स्पिरिचुअली रियलाइज्ड, एंड सच स्पिरिचुअली रियलाइज्ड पीपल आर नोन एज सिद्धि। सिद्ध बोलते हैं ना, सिद्ध है, सिद्ध पुरुष है। एंड जो सिद्ध पुरुष बाकी लोग को मदद करना चाहता है, उसको हम लोग साधु बोलते हैं। जो प्रैक्टिस कर रहा है उसको साधक बोलते हैं, जो प्रैक्टिस करके परफेक्ट हो चुका है उसको सिद्ध बोलते हैं, एंड जो प्रैक्टिस करके परफेक्ट हो गया एंड सामने वाले को भी मदद करना चाहता है, उसको हम लोग साधु बोलते हैं। तो दिस आर द सेम वर्ड्स। तो इसके लिए क्या है, वो इंसान जो प्रैक्टिस करके परफेक्ट हो चुका है, आत्मा साक्षात्कार हो चुका है, वहां पे रियलाइज कर चुका है उस दुनिया को, फिर यहाँ के लोग को वो बताना चाहता है। तो इसके लिए क्या है, वो ही नोज द वे, शास्त्र समझ चुका है, ही गोज द वे, सिद्ध हो चुका है, एंड देन ही शोज द वे, हम लोग को भी वो रास्ता बताता है। तो इसके लिए क्या है, इन दिस वे जो भी लोग आचार्य आते हैं, साधु आते हैं, दीज आर दोस पीपल हु हैव ऑलरेडी रीच्ड। तो वहां दैट इज हाउ वी गेट टू नो। क्योंकि अगर कोई गया ही नहीं है, तो फिर ये शास्त्र में जो हमको ज्ञान मिल रहा है, व्हाट्स द प्रूफ दे आर राइट। तो ऑब्वियसली शास्त्र अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे तो क्या है, शास्त्र इवन साइंस प्रूव करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंटेशन से, कि भाई जो शास्त्र में दिया सही है कि नहीं। एंड वी कैन सी साइंस बोलते ही हम टेस्ट करेंगे, घूम फिर के क्या होता है, वो लोग प्रूव कर देते हैं कि हाँ भाई शास्त्र में जो दिया है वो सही है। तो इसके लिए क्या है, दोज पीपल हु आर गिविंग अ शास्त्र साधु के रूप में एंड ऑल, दोज आर दोज पीपल जो उन्होंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाके रियलाइज करके फिर दे आर ट्राइंग टू हेल्प अस टू गो बैक। तो जो हायर लोग हैं ठीक है वहां ओके पर सर, कोई थैंक यू। ड्यूरेशन नहीं है, मतलब रुकने का, वंस यू आर रीच देयर तो यू आर देयर ओनली, राइट? या यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ओके, तो जैसे हम वो मतलब देख सुनते हैं कि वृंदावन में सोल्स रहते हैं, मतलब देवी देवता आते हैं जीव का, मनुष्य का रूप धारण के, अभी भी लीला चलती है, मतलब तो वो सब ऊपर के मतलब लोग से अपना जस्ट वैसे ही आ जाते हैं, मतलब हालांकि वहां बिलोंग करते हैं, बट दे कैन कम देयर, दे हैव दैट पावर, राइट? सॉरी, ये क्या बोले आप? मैं बोल रहा हूँ जैसे कि हम सुनते हैं ना कि वृंदावन में रहते हैं देवी देवता मनुष्य के रूप में, आज भी भगवान कृष्ण की लीलाएं चलती हैं वहां पर, तो वो लोग उसी उच्च लोक से आ जाते हैं यहाँ पर। हाँ, तो जो देवी देवता रहते हैं, जब भगवान के लीला रहता है, चाहे वो राम जी के रूप में है, कृष्ण जी के रूप में है, तो क्या करते हैं, वो असिस्ट करने के लिए लीला में वो लोग भी डिसेंड करते हैं वृंदावन या जो अयोध्या है। एंड देन वो असिस्ट करने के बाद दे गो बैक टू देयर स्वर्गलोक, एंड देन भगवान ही गो बैक टू हिज अबोर्ड, गोलोक धाम है जहाँ पे। वो तो वापस मतलब चले गए, ठीक है, एज पर हम्म भागवत, मतलब ठीक है, हम्म वापस चले गए। हम्म भगवान कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण किया या भगवान राम ने किया, बट हम्म। आज की डेट की मैं बात करूं, कलयुग में भी इवन दिस इज गोइंग ऑन ना, कि मतलब ब्रज में साक्षात प्रभु हैं, विराजते हाँ हैं, हाँ, तो मतलब दे हैव द पावर ना कि दे कैन कम एनी टाइम हेयर और लीला वो तो करके। है, वो तो है ही। भगवान तो क्योंकि जो धाम रहता है, धाम में तो हमेशा भगवान रहते ही है, चाहे वो हम्म, स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो, मटेरियल वर्ल्ड हो। एंड साथ साथ क्योंकि हमने मल्टीवर्स भी बोला है, तो अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग टाइम चल रहा है। तो अभी हमारे इधर कलयुग चल रहा है, तो दूसरे यूनिवर्स में कहीं तो द्वापर युग या त्रेता युग चल रहा है, तो राइट। वहां पे भगवान का वहां पे लीला चल रहा है। तो इन दैट वे कीप गोस ऑन।
इसके लिए बोलते हैं हरि अनंत हरि कथा अनंत, तो इसके लिए चलता रहता। राइट। तो ऐसी करोड़ों सृष्टियां मतलब हैं इस यूनिवर्स, राइट। बिल्कुल। दिस इज व्हाट इवन आज के जमाने में लोग क्या बोल रहे हैं, मल्टीवर्स। तो दिस एक्चुअली ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अवर वैदिक शास्त्र। जस्ट अ पॉइंट। तो मेन चीज क्या है, अगर इवन अगर हम सूर्य देव को देखेंगे तो सूर्य देव हो गए, इंद्र देव हो गए, तो जो भी स्वर्ग रहता है, स्वर्ग में अगर डेथ होता है तो सूर्य देव और इंद्र देव का डेथ हो गया तो क्या होगा। तो मेन चीज वही है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं सीईओ हूं, तो मेरा नाम सीईओ नहीं है, मेरा पोजीशन का नाम सीईओ है, मेरा नाम गिरिधर है। तो न सेम वे इंद्र जी, इंद्र इज अ पोजीशन, इंद्र जी का नाम पुरंदर है। यस यस। और हमारे जो सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव का नाम विवस्वान है। तो इन दिस वे हर एक का पोजीशन होता है, एंड दे असिस्ट। एक्चुअल वो लोग भगवान का सेवा कर रहे हैं, हमसे तो ऑब्वियसली एक्सॉल्टेड है वो लोग। तो इसके लिए क्या है, दे एक्चुअली असिस्ट इन गॉड्स लीला। एंड जब वो लोग उस तरीके से भगवान की लीला में असिस्ट करते हैं, इन दैट वे वो लोग भी अल्टीमेटली प्यूरिफाई हो जाते हैं, प्योर डिवोटी बन जाते हैं, दे ऑल्सो गो बैक टू गॉड। सो इन दिस वे। अभी पूछ रहे हैं, वन डे ऑफ ब्रह्मा 10,000 डे अर्थ ऐसा होता है, बहुत लंबा होता है। सो क्या मल्टीवर्स में भी हमारी तरह लोग रहते हैं? नहीं, हमारे जैसे लोग नहीं रहते, हमारे जैसे सोल्स रहते हैं, हमारे जैसा कैरेक्टर नहीं रहते। हम एक ही है, हम हम मल्टी यूनिवर्स में हम खुद को विकसित करके नहीं रखे, बट हमारे जैसे सोल्स है, उतना तो पक्का है। इट्स नॉट दैट कि मल्टी यूनिवर्स, मल्टीवर्स मतलब कि हाँ, तो बेसिकली ये जो थियरी है मल्टीवर्स का, अकॉर्डिंग टू दैट थियरी दे थिंक कि जो ये एक यूनिवर्स है, एंड मल्टीवर्स कैसा रहेगा, ये यूनिवर्स जैसा ही रहेगा। तो अगर ये यूनिवर्स जैसा ही रहेगा तो क्या होगा, उस दुनिया में वैसा ही चीजें होंगी जैसे कि ये दुनिया में हो रहे हैं, तो मेरे जैसा ही कोई एक इंसान रहेगा। तो इन दैट वे दे आर सी। बट एक्चुअली इफ यू सी मल्टीवर्स में अगर हम देखेंगे तो कंटेंट सेम रहेंगे, बट एक्चुअली उसके अंदर जो लोग रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है। तो हर एक इंडिविजुअल अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। तो सिंपल चीज है कि अगर मल्टीवर्स में भी अगर ऐसा अलग अलग इंसान होता, तो ऑब्वियसली अगर वो हमारा रेप्लिका होता तो ऑब्वियसली हमको पता रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, मल्टीवर्स है, बट ऐसा नहीं कि हमारे जैसा ही कोई इंसान है। वहां पे भी गीता क्वेस्ट कहीं पे भी चल रहा है, कि यूनिवर्स नंबर 3 में भी गीता क्वेस्ट चल रहा, हम जैसे लोग बैठे, तो ऐसा नहीं है। मल्टीवर्स में भी है लोग, बट क्या है, दे आर सोल्स। हर एक यूनिवर्स में सोल्स रहते ही। तो इन दैट वे इन ऑल द यूनिवर्स देयर आर सोल्स, बट हमारे बट एवरीबडी इज यूनिक। हम लोग ये यूनिवर्स में है, एंड वो लोग वो यूनिवर्स में, इन दैट वे। एंड ब्रह्मलोक में अगर हम देखेंगे, एक पूरा कैलकुलेशन है, ये जब आएगा टॉपिक तब हम लेंगे। मेरे को ये पूछना है, जैसे बहुत से हम देखते हैं कि बहुतों की बहुत शॉर्टर एज होती है, लाइक मतलब जैसे माई डॉटर पास अवे एट द एज ऑफ 4 मंथ्स, ठीक है। तो हम्म हम लोग बोलते हैं अपने कर्म मतलब पूरे प्रारब्ध को भोगने के लिए आया था, ठीक है। उसके बाद फिर वो क्या रहता है, मतलब वो पुनर्जन्म लेते हैं जीव, या फिर वो देख मतलब, या फिर उनके पुराने जो छोटे से बेकार कर्म थे, मतलब उसको संचित कर्म जो होते हैं उनको वो भोग हम्म कर वो ऊपर वैकुंठ लोग या वॉट जहां भी वो रिलेट करते होंगे वहां चले जाते हैं, या मतलब कैसे ये साइकिल चलता है, मतलब या फिर। हाँ, तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन, बट मेन थिंग इज ऑब्वियसली जब वो लोग आते हैं उनका प्रारब्ध कर्म। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्म। पहला है संचित कर्म। संचित कर्म मतलब कि इट इज आवर बैंक अकाउंट, कि पूरा हमारे इतने जन्मों में जितना भी हमने कर्म किया है, दैट इज आवर संचित कर्म। एंड उसमें प्रारब्ध, प्रारब्ध जो हम बोलते हैं ना, अरे मेरा प्रारब्ध था, मतलब क्या, दोष कर्मा, दोष कर्मा वी आर टू फेस इन दिस बर्थ, उसको हम लोग बोलते हैं प्रारब्ध कर्मा। इसके अंदर क्या आता है, बर्थ मतलब कि व्हाट काइंड ऑफ बॉडी वी विल गेट, व्हाट काइंड ऑफ बॉडी, बाद में लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन विच सेल्फ मीन्स डेथ। एंड उसके बाद क्या है, फेम, इनफेमी, बाद में सक्सेस, एक्सटेंट ऑफ सक्सेस एंड एक्सटेंट ऑफ फेलियर। ये सब कुछ फिक्स रहता है, ये हमारे प्रारब्ध से आता है। एंड ये तो डेबिट हो गया, हमारे संचित से डेबिट हो गया। अभी संचित में भी कुछ ऐड होता है, वो क्या है, हमारा क्रियमान। इस जन्म में हमको ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला है, इस जन्म में हम जो कर्म करेंगे वो खा जाएगा, तो दैट बिकम्स अ क्रेडिट। मतलब हमारा संचित कर्म क्या है, हमारा मास्टर बैंक अकाउंट है,
प्रारब्ध हम उससे डेबिट ले रहे हैं, संचित क्रियामान हम उसमें क्रेडिट कर रहे हैं, तो हमारा क्रेडिट टू संचित कर्मा ऑफ दिस बर्थ्स कर्मा, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो वही बात है, तो इसके लिए क्या है, एंड ऑब्वियसली अभी क्योंकि उनका इस जन्म में उनका प्रारब्ध क्लियर हो गया है, नेक्स्ट जन्म उनको यूजुअली उनका अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट बर्थ में नेक्स्ट सेट ऑफ उनका प्रारब्ध मिलेगा बेस्ड ऑन विच दे कंसिडर लाइफ। And for them, actually, if we pray and all those things, then what happens? Those सुकृति उनको मिलता है, ताकि वो लोग और जल्दी वो लोग भक्ति करके वो लोग आगे जा पाए। तो जो भी क्रेडिट्स हो रहे हैं, मतलब लेट्स से पॉजिटिव क्रेडिट्स, तो मेरे पुराने जो प्रारब्ध हैं वो उससे मुझे कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। लेट्स से कि मेरे को लिखा हुआ था कि आपको तलवार से हाथ कटना है, बट ड्यू टू माई गुड कर्मास ऐसा होगा कि मुझे बस एक सुई चुबा दी जाए कि भाई ठीक है, दिस इज द इम्पैक्ट बिकॉज यू आर टेकिंग गॉड्स नेम एंड यू हैव रियलाइज दैट यू हैव मतलब कमिटेड सिंस इन द प्रीवियस लाइव्स। ऐसा कुछ होगा, ये गुड क्रेडिट्स में आगे जाके इंटरेस्ट भोगूंगा, मतलब नेक्स्ट, या फिर अभी भी मेरे एडजस्ट हो सकते हैं। जैसे लेट्स से कि अभी मैं कर रहा हूँ तो मेरा पूरा कहते हैं रेखाएं बदल जाती हैं भाग्य की, प्रेयर्स जी में जी इतना जी, दम है, व्हाटएवर। तो दिस इज हाँ, ट्रू मतलब फॉर दिस बर्थ एज वेल। यस। तो बेसिकली क्या होता है, देर आर थ्री काइंड्स ऑफ कर्म। तो जो आप बोले वो हाँ, शॉर्ट में बोलेंगे तो हाँ, बट एक्चुअली देखेंगे तो क्या है, एक होता है पुण्य, एक होता है पाप, एंड एक होता है भक्ति। तीन चीज होता है। तो क्या होता है, पाप हो गया, पुण्य तो ऑब्वियसली कोई ना बोलने जितना तो हम एडवांस्ड है नहीं, बट स्टिल क्या है, पाप हो गया भाई, कोई अच्छा कर्म करके उनका बुरा कर्म को खत्म नहीं कर सकता। इट्स नॉट पॉसिबल कि हाँ मैंने किसी इंसान को मार दिया एंड मैंने उनको 25 लाख उनके फैमिली को दे दिया, बस हो गया, +1 -1 0 नहीं। अगर आपने 25 लाख किसी को डोनेशन दिया है, तो क्या है, अगले जन्म में आपको 25 लाख देने की वजह से आपको 50 लाख आएगा किसी के रूप में, या फिर आपके फैमिली के रूप में, कैसे भी। और क्योंकि आपने किसी को मर्डर किया है, तो अगले जन्म में बेचारे आप अच्छे से जी रहे हैं और कोई चोर आके आपको और सोते वक्त आपको मार दिया। तो अच्छा कर्म भी आपको भोगना है, बुरा कर्म भी आपको भोगना है। बोथ ऑफ देम डू नॉट कैंसिल ईच अदर, बट व्हाट एक्चुअली इंटरफियर्स इज आवर भक्ति, भगवान का नाम लेना, भक्ति करना, दैट एक्चुअली कट्स आवर पुण्य एंड पाप, विच बेसिकली मीन्स दैट कट्स आवर कर्म। तो जब हम भक्ति करते हैं, वो हमारे कर्म को काटता है, एंड जब हमारा कर्म कटता है, हमारा ये जो ये मिसरीज है, क्लेश है, हमारी जिंदगी में क्लेश आना बंद हो जाता है। एंड एक बार जब हमारा पूरे कर्म खत्म हो जाएंगे, संचित क्रियमान, ऑब्वियसली जब हम भक्ति में लगते हैं, और अगर हम पूरे तरीके से भक्ति में लगे हैं, पूरे तरीके से इन द सेंस चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, जो हम ये 1-2 महीने में आपको समझ में आ जाएगा सिंपली कितना सिंपल है भक्ति, वो करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट क्रियमान कर्म हमारा कोई क्रिएट नहीं होगा बाय डिफॉल्ट। क्योंकि अगर हम भक्ति कर रहे हैं, तो क्रियमान कर्म क्रिएट होना बंद हो जाता है। हमारा प्रारब्ध तो हमको भोगना ही है, एंड वो खत्म होना ही चाहिए। प्रारब्ध हैज टू गेट कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ दिस बर्थ, एंड क्रियमान हम क्रिएट नहीं कर रहे, फिर हमारा सिर्फ संचित बचा रहेगा। एंड जितना हम अच्छे से भक्ति करते रहेंगे, हमारा संचित भी खत्म होता जाएगा। एंड एक बार संचित भी खत्म हो गया, देन व्हेन वी बिकम कंप्लीटली फ्री फ्रॉम कर्म, वो कर्म बंधन से जब हम फ्री हो जाएंगे, देन वी गो बैक टू वैकुंठ। तो इसमें एक चीज जैसे हम देखते हैं कि हम अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, राइट? तो हम्म हम देखते हैं कि ऑन द अदर साइड द पीपल हु आर इनटू मतलब जो भी मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, बेकार काम कर रहे हैं, मतलब दे आर जस्ट ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, ठीक है? हम्म तो हमें लगता है ये बहुत खुश हैं, और हम लोग जितनी भक्ति कर रहे हैं उतनी हमारी परीक्षा हो रही है। मतलब कि बोलते हैं कि उसको सोने को तपाया जाता है, तो बराबर। मतलब तो ये अब हमें समझ नहीं आता सबका, मतलब फिर वो एक ट्रस्ट जो है वो हटने लगता है कि यार भगवान का नाम लेके भी मुझे इतनी सारी परीक्षा झेलनी है, देन व्हाट्स द यूज। तो कहीं ना हम्म कहीं वो एक ट्रस्ट जो है आपका डिविएट हो जाता है कि नहीं ठीक है, फिर ये तो मुझसे अच्छे तो यही है, ये प्याज भी खा रहे हैं, लहसुन भी खा रहे हैं, दे आर ईटिंग चिकन व्हाटएवर, दे आर going for illicit relationship or whatever, they are happy। और मतलब people like us, they in the even if I work for corporate, तो वो कहते हैं कि नहीं यार ये तो सड़ू बंदा है, इससे तो बात ही मत करो, ये हमारे ग्रुप हम्म का नहीं है। तो एक हम लोगों को एक रहता है ना कि यार ये मैं सही कर रहा हूँ, ऐसा सबसे हम्म अलग होके भगवान का नाम लेके, तो कंफ्यूजन माइंड में रहता है। तो उस चीज को कैसे मतलब बैलेंस करें, या कैसे उसको पॉजिटिव वे में देखें कि मतलब हम लोग गंदी चीजों की तरफ मतलब हाउ कैन आई टेक द मतलब कि मोटिवेशन कि भाई मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, ये लोग करेंगे तो ये उनका मतलब जो भी भोगना है भोगेंगे, हम्म। इसमें कैसे हम समझ सकते हैं? तो मेन चीज क्या है, सबसे पहली बात, अगर आप मेनली देखो, अभी माया का ट्रिक आप देखिए, ये मैं वापस आगे भी लूंगा बट अभी भी ले लेता हूँ। तो मेन चीज क्या है कि अगर
अगर इस दुनिया से बाहर जाना इतना आसान होता तो हम लोग इतने जन्मों से हम इस दुनिया में क्यों है? बेसिकली हमको इसके लिए समझना है कि दुनिया में माया है। जब भगवान बोलते हैं भगवत गीता 7.14 में बोलते हैं, देवी ऐश गुणमयी मम माया धुरत्य है, कि इस दुनिया में माया से बच के निकलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये वन ऑफ द फंडामेंटल ट्रिक्स है जो माया यूज करती है, कि यार मैं भगवान का भक्ति कर रहा हूँ और मैं मेरे साथ बुरा हो रहा है एंड वो लोग इतना कुछ कर रहे हैं, उनका कुछ है। तो सबसे पहली बात क्या होता है, वो लोग क्योंकि उन लोग का पोजीशन आज अच्छा है, सबसे पहले बात क्या है, हम देख रहे हैं कि वो लोग गंदा चावल डाल रहे हैं, बुरे कर्म को आप गंदा चावल समझ लीजिए। एंड हम देख रहे हैं कि वो नीचे से जब खोल रहे तो अच्छा चावल आ रहा है। तो मेन चीज क्या है, उन्होंने जो पहले अक्यूमुलेट किया है अच्छे कर्म, उसके फल हम लोग को अभी के लिए मिल रहा है। एंड बुरे कर्म उनको कभी भी आगे आएगा, आगे जन्म में आएगा या फिर इस जन्म में ही उनको आता रहेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, आप किसी को भी पूछे और भाई कैसा है, वो क्या बोलेगा, हाँ सब मस्त। सबको पता है कोई मस्त नहीं है, बट क्या है सब बोलेंगे हाँ मस्त। तो इसके लिए क्या है, उनके लाइफ में भी कुछ ना कुछ वन वे और द अदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इस जन्म में आगे आ सकते हैं इनकेस अगर वो लोग इतने मजे किए कि अच्छा चावल खत्म ही कर दिया, उन्होंने पूरे अच्छे कर्म खत्म कर दिए, तो भाई उनको तैयार होना पड़ेगा इसी जन्म में, नहीं तो अगले जन्म तो एनीवेज है ही, भाग सकते हो चुप कहा सकते हो। तो इसके लिए क्या है, हमने कर्मा के सेशन में जो बेसिक कोर्स में हमने देखा था कि लॉ ऑफ कर्मा कान बी ब्रोकन बाय एनीवन एंड इट इज इनफॉलिबल। सबको फेस करना ही पड़ेगा एंड कोई उससे बच नहीं सकता। तो इसके लिए क्या है, इन द सेम वे एवरीबडी हैज टू फेस देम। एंड दूसरी बात क्या है कि उनके साथ अच्छा हो रहा है, एक और पॉइंट, हाँ मेन चीज क्या है, हमको लगता है कि अरे लोग बोलते हैं कि अरे ये क्या बंदा है ऐसा वैसा। तो मेन चीज क्या है, वी नीड टू फॉलो द क्रिएटर rather देन फॉलोइंग द क्राउड। तो इसी के लिए हमको शास्त्र पढ़ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं एंड भक्तों के संग में रहते हैं, तब हम लोग को नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस आता है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ एक्चुअली मैं सही कर रहा हूँ। एंड अगर आप देखेंगे तो भगवान स्वयं क्या कहते हैं कि जो आप बोल रहे थे, आपने जैसे बोला था हाथ कटने के पहले सुई सुई चुभता है। तो जैसे में जब आप भक्ति करते हो तब आपको वो ये मिलता है। भगवत गीता 4.11 भगवान कहते हैं कि ये ऐसा माम प्रपद्यते ताम सतैव भजामि हम, जितना आप सरेंडर करोगे इन दैट वे आई रेसिप्रोकेट। तो उस तरीके से क्या है, भगवान आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे और आपका जितना जरूरत है उतना आपको कर्म मिलेगा, बाकी का कर्म भगवान नलिफाई कर देते हैं। और ये सब तो क्लियर है, ये सब तो सुनेंगे हमको क्लियर हो जाएगा। बट ऐसा क्यों है कि भाई मेरा को फिर भी मेरे को सफरिंग फील हो रहा है, सामने वाले खुश है, ऐसा क्यों है? तो यहीं पे एक्चुअली माया ट्राई काम करती है। तो मेन चीज क्या है, बेसिक आप माया के बोलते हैं ना एम्पथी, वुड कीप योर सेल्फ ऑन अदर पर्सन शूज बोलते हैं। तो वो हम लोग थोड़ा सा माया के पैरों में हम लोग डाल के देखते हैं, बेसिक चीज है। उसका काम, माया का काम क्या है, वो तो माया भी भगवान के ही सर्वेंट है, तो वो तो बुरी नहीं है। बट उसका काम क्या है, उसका काम दिया है कि भाई सिंसियर जो है वही भगवान के दाम आ सकता है, बाकी लोग इस दुनिया में ही रहेंगे। ये टेस्ट करने का काम माया का है, टू टेस्ट द सिंसियरिटी। तो बेसिक चीज, अगर एक इंसान इस दुनिया में बुरे कर्म कर रहा है, मतलब क्या, जिससे जितना वो बुरा कर्म करता जाएगा, ये भगवत गीता 7 चैप्टर में आता है, एंड में 25 to 30 के बीच में, कि मेरा हाँ, कि जो बहुत सिंफुल है ही कैन नॉट अप्रोच द सुप्रीम लॉर्ड। तो बेसिकली अगर हम भक्ति करना चाहते हैं, तो जो बहुत पापमय कार्य करते हैं दे कांट एक्चुअली अप्रोच भक्ति। तो वन वे हम लोग का सनातन धर्म का एक छोटा सा क्लू मिल गया कि क्यों इतने कम लोग फॉलो करते हैं। जब तक आप सिंफुल एक्टिविटीज में एंगेज, आपका टेस्ट नहीं आएगा धर्म फॉलो करने का, इट्स ऑब्वियस। मतलब कि अगर आपको सिंफुल एक्टिविटीज में मजा आ रहा है और आपको धर्म फॉलो करना, इट्स नॉट पॉसिबल। एक तो आपको सिंफुल लाइफ छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको धर्म फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए क्या हो जाता है, दे चूज टू एंजॉय सिंफुल लाइफ। इसके लिए भी सी दैट धर्म फॉलो करने के लिए इतने लोग हमको दिखते नहीं। एंड दूसरी बात क्या है, एंड जब वो ऐसा मजा करेगा, तो बेसिक चीज है, जब वो गलत काम कर रहा है एंड उसके साथ अच्छा हो रहा है, तो क्या होएगा, उसके सारे अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, फिर जब उसके पास अच्छे कर्म नहीं है तो वो सफर करेगा ही। एंड फिर क्या होगा, और ऊपर से बुरा कर्म भी कर रहे हैं। तो इस जस्ट लाइक उसको उठा लिया माया ने, उसको उठा लिया सीधा 100 फ्लोर में लेके आ गया। अगर एक माला से उसको ढका दिया, क्या होएगा, उसका थोड़ा हाथ में स्क्रैच आएगा। 10 माले से ढका दे दो, पूरे अच्छे कर्म खत्म कर दो, पूरे बुरे कर्म बढ़ा दो, फिर उसको लात मारो, तो देखो क्या होएगा, वो कभी उठ नहीं पाएगा। फिर सोचो कितने जन्म वो इस दुनिया में जीता रहेगा। एंड वही चीज, ये तो उसका तो ऑब्वियस है, चलो उसका तो समझ में आ रहा है, वन वे फिलोसॉफिकली समझ में आता है। आप ही खुद का देखते हैं, चलो हम लोग भक्ति कर रहे हैं और भगवान बोलते हैं कि आपको बस छू ही चुभेगा, तो फिर भी मेरे साथ इतना क्यों हो रहा है। बेसिक चीज है, माया यहाँ पे भी टेस्ट करेगी। माया बोलेगा अच्छा तुम्हें भगवान का सेवा करने में पसंद है, तो मैं मतलब तुम्हें इस दुनिया में तुम्हें मजा नहीं करना, चलो ठीक है देखते कि कितना है ऐसा। तो क्या करती है माया, फिर तुम्हारा बुरे कर्म को पहले देंगी तुमको,
चलो भाई बुरा कर्म है ना, ऑलरेडी भगवान तुम्हारा कम कर रहे हैं, तो सबसे पहले बुरा कर्म इसको दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी भगवान कम भी कर रहे हैं एंड हमारे सारे बुरे कर्म भी आ जाएंगे सामने, एंड जब हमारे बुरे कर्म आ जाएंगे वो क्लियर हो जाएंगे, तो बेसिकली क्या है, हमारे बोलते हैं ना जेल में पैर में ऐसा डाल के एक वेट रहता है बड़ा सा, वो डाल के रखता है, तो जब वो कर्म खत्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग फ्री हो जाएंगे। फिर हम लोग जब भी हम भक्ति में लगेंगे, ऑलरेडी हम भक्ति कर रहे हैं और हम लोग सिंफुल लाइफ हमने बाय डिफॉल्ट मतलब छोड़ दिया है, ऊपर से हमारे बुरे कर्म जो आ रहे हैं उसमें हम लोग का बहुत ऑलमोस्ट बुरे कर्म पूरे हमारे क्लियर हो जाएंगे मेजोरिटी। एंड इस प्रोसेस में जो टिक जाता है मतलब वो सिंसियर है कि उसको भक्ति ही करना, एंड जो पर्सन को एंजॉय करना था कि भक्ति करने को, वो बेसिकली बोलेगा अरे यार ये क्या है, ये मैं सोचा कि यहाँ पे आके मजे करेंगे बट यहाँ पे भी तकलीफ है, तो वो भक्ति छोड़ देगा। तो बेसिकली ये टेस्ट है कि भाई तुम टिकोगे कि नहीं। गॉट इट। ठीक है, समझ गया। मुझे एक चीज बता दीजिए, जैसे हम लोग मतलब सुनते हैं कि ये गीता मैनेजमेंट गुरुज पढ़ा रहे हैं आजकल, ठीक है, तो उसके लिए मैं कौन सा चैप्टर पढ़ सकता हूँ जो ज्यादा रेलेवेंट हो इस चीज में, मतलब कि वो कॉर्पोरेट्स में या इधर सेमिनार्स में एमबीए स्टूडेंट्स को, आईएम्स में, व्हाटएवर, इवन ऑक्सफोर्ड का भी मैंने सुना है कि मतलब, तो होल गीता रेलेवेंट है या कोई पर्टिकुलर ऐसा चैप्टर है विच आई कैन मतलब रीड माई सेल्फ कि भाई ये चीज ज्यादा रेलेवेंट है इन टर्म्स ऑफ, मतलब कि बोलते हैं कि आपको एज ए ह्यूमन बीइंग होल हेल्प करती है गीता, बीट पर्सनल बीट प्रोफेशनल, तो जी प्रोफेशनल जी, टर्म्स में कोई ऐसा है पर्टिकुलर चैप्टर जो मैं रीड कर सकूं जो ज्यादा रेलेवेंट हो? ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, गीता में बहुत सारी वर्सेस है, हाँ अलग अलग चैप्टर से जो यूज ऐसा ये आता है, तो इट्स नॉट वन स्पेसिफिक पार्ट। ऑलराइट, तो किसी और का कोई प्रश्न है बाय द वे? प्रभु जी, हाँ जी, Prabhu ji, so good karma and bad karma can be only nullified by chanting, यस यस बाय भक्ति, या by bhakti, by chanting. या Good karma and bad karma can be nullified only by chanting. या चैंटिंग लाइक भक्ति में इट्स अ पार्ट ऑफ चैंटिंग, सॉरी चैंटिंग इज पार्ट ऑफ भक्ति, भक्ति में इट्स कम्स इन श्रीमद् भागवतम 7.5.23-24 में आता है, वेर प्रहलाद महाराज सेज श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम, देयर आर 9 limbs of bhakti which 9 limbs of bhakti. out of which Shravanam and Kirtanam we are doing. Shravanam means hearing, which we are doing now. Kirtanam we are chanting. So these two are the limbs of bhakti. So by doing bhakti, our karma gets cleared. Thank you, thank you. नवदा भक्ति इसी को बोलते हैं क्या? बिल्कुल यही है वो। ऑलराइट, तो आज के लिए हम यहाँ एंड करेंगे, आगे हम लोग योगा लैडर पिरामिड पे चर्चा करते हैं, तब तक विराम लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। Hare Krishna, Prabhu ji. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।